بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم درویش ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات، ابھی حال ہی میں ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں آپ کو بتایا تھا کہ شیطان کی موت کا منظر کیسا ہوگا، ملک الموت ابلیس شیطان کی روح کیسے قبض کریں گے۔ ہماری یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں نے دیکھی اور بہت سے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ شیطان کے مکمل خاندان کے حوالے سے ویڈیو بنائیں تاکہ لوگ آگاہی حاصل کر سکیں۔ تو ناظرین، اس ویڈیو میں شیطان کے خاندان کا ایک سچا واقعہ آپ سب کے ساتھ شیئر کریں گے اور شیطان کی بیوی کا عجیب و غریب نام بھی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے۔ یہ بات تو ناظرین سبھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کے شعلوں سے ایک جن کو پیدا کیا تھا، اس کے بعد اس کے لیے ایک بیوی پیدا کی۔ اس جوڑے سے تمام جنات کی نسل دنیا میں پھیلی۔ ان جنات میں سے ایک جن کا نام عزازیل تھا۔ اس عزازیل جن کو جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس عزازیل نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور حکم الہی کی خلاف ورزی کی پاداش میں اس کا نام ابلیس تجویز کر دیا گیا۔ شیطان بھی اس ابلیس کو کہتے ہیں۔ اسی ابلیس نے آدم و حوا کو جنت سے نکلوایا اور قابیل کے ہاتھوں حابیل کو قتل کروایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کرایا، قوم عاد کو تیز آندھی سے تباہ کروایا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم چیخ سے ہلاک ہوئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو زمین میں دھسا دیا اور ان پر سنگباری کرائی۔ فرعون اور اس کی قوم کو غرق کرا دیا۔ یہی ملعون سب کا ساتھی تھا اور غزوہ بدر میں مشرکین کا یار تھا۔ یہ شیطان اور اس کی نسل جہنم میں جائے گی، لیکن اس شیطان کی نسل میں سے اس کا ایک پوتا جنت میں کیوں جائے گا؟ یہ مکمل واقعہ احادیث کی کتب میں یوں بیان ہوا ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مکہ مکرمہ کے جنگلات کی طرف نکلے۔ ہم تہامہ پہاڑوں کے ایک پہاڑ پر بیٹھے تھے کہ ایک بوڑھا شخص نمودار ہوا جو اپنی لاٹھی کے سہارے چل رہا تھا۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، یہ بوڑھا اپنی چال اور آواز سے جن معلوم ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دریافت کیا، تو کون ہے؟ اس نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جن ہوں، میرا نام حامہ بن ہیم بن لاقیس بن ابلیس ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تیرے اور شیطان کے درمیان صرف 2 پشتوں کا فاصلہ دیکھ رہا ہوں۔ تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی عمر دنیا کی ہے اتنی ہی میری عمر ہے، یا اس سے کچھ کم۔ جن دنوں قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا اس وقت میری عمر چند برس کی تھی۔ میں پہاڑوں میں دوڑتا پھرتا تھا اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال دیا کرتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو بہت برا عمل تھا۔ اس جن نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، مجھے ملامت نہ فرمائیے، کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور توبہ کر لی تھی اور دعوت دین کے کام میں ان کے ساتھ تعاون کیا تھا اور انہیں راضی کر لیا تھا۔ اس کے بعد وہ جن اتنا رویا کہ ہم بھی رونے لگے۔ اس جن نے کہا، اللہ کی قسم، میں بہت شرمندہ ہوں اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کافر رہوں، بلکہ میں نے حضرت ہود علیہ السلام سے ملاقات کی اور میں ان پر ایمان لایا۔ اس طرح میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات کی ہے، اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا میں بھی ان کے ساتھ تھا، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تو میں بھی ان کے ساتھ تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے اس کنویں میں پہنچ گیا تھا۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی میری ملاقات ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے تورات سکھائی تھی اور فرمایا تھا، اگر تم عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرو تو ان کو میرا سلام کہنا۔ جب میری ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کا سلام ان تک پہنچایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے وقت انہوں نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اگر تیری ملاقات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو ان کی خدمت میں میرا سلام عرض کر دینا۔ لہٰذا میں اس امانت سے سبکدوش ہونے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پیغام سنا تو آپ کے آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام پر سلام ہو، اور اے حامہ، امانت پہنچانے کی وجہ سے تجھ پر بھی سلام ہو۔ اے حامہ، تیری کیا حاجت ہے؟
उस जिन ने अर्ज़ किया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुझे तौरात सिखाई थी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुझे इंजील सिखाई थी, बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कुरान सिखा दीजिए। लिहाजा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जिन को कुरान मजीद की तालीम फरमाई और उसको सूरह वाक़िया, सूरह मरसलात, सूरह निबा, सूरह तकवीर, मौज़तैन और कुल हुवल्लाहु अहद सिखलाईं और फरमाया कि ए हामा, जिस वक्त तुम्हें कोई हाजत हो फिर मेरे पास आ जाना और हमसे मुलाकात ना छोड़ना। एक रिवायत में है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जिन को सिर्फ 10 सूरतें सिखाई थी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, लेकिन इस वाक़या के बाद हामा के बारे में फिर कुछ नहीं फरमाया। खुदा जाने हामा अब भी जिंदा है या मर गया। अब यहाँ नाज़रीन ये बात जान लीजिए कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई नहीं मगर उसके साथ एक शैतान उसका साथी नज़दीक रहने वाला मुकर्रर किया गया है। लोगों ने अर्ज़ किया, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी शैतान है? तो हुज़ूर ने फरमाया, हाँ मेरे साथ भी है, लेकिन अल्लाह ताला ने उस पर मेरी मदद की है तो मैं सलामत रहता हूँ और मुझे शैतान कोई बात सिवाय नेकी के नहीं बतलाता। नाज़रीन, खुदा ताला हकीम मुतलक है और हकीम का कोई काम खाली अज़ हिकमत नहीं होता। खुदा ताला ने जो कुछ भी पैदा फरमाया है मबनी बर हिकमत है। किसी चीज़ को भी देखिए तो यूं कहिए कि ऐ हमारे रब, तूने इसे बेकार नहीं बनाया। इमाम गज़ाली ने कीमियाए सआदत में लिखा है कि एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने छत पर छिपकली को देखा और खुदा से पूछा, इलाही तूने छिपकली को क्यों बनाया? खुदा ताला ने फरमाया, मूसा तुमसे पहले ये छिपकली मुझसे पूछ रही थी कि इलाही तूने मूसा को क्यों बनाया? मेरे कलीम, मैंने जो कुछ बनाया है मबनी बर हिकमत ही पैदा फरमाया है। हदीस में है कि जब अल्लाह ताला ने इब्लीस की नस्ल और उसकी ज़ौजा पैदा करना चाही तो शैतान पर गुस्सा का इल्का किया। गुस्सा की वजह से आग की एक चिंगारी पैदा की। इस चिंगारी से हक ताला ने इब्लीस की बीवी पैदा कर दी। जितने इंसान पैदा हुए हैं इतने ही जिन्नात भी पैदा हुए हैं। रिवायत है कि हक ताला ने इब्लीस से फरमाया था कि जितनी औलाद आदम की पैदा करूंगा इतनी ही औलाद तेरी भी पैदा करूंगा। दूसरी हदीस में मज़कूर है कि हर इंसान के साथ हक ताला जिन भी पैदा करता है जो उसको बुराई पर उकसाता रहता है। जिन्नात मुज़क्कर भी होते हैं और मुअन्नस भी। जिन्नात की एक किस्म इंसान जैसी है, वो इंसानों की तरह मुज़क्कर और मुअन्नस होते हैं, आपस में शादी ब्याह करते हैं और उनकी औलाद भी पैदा होती है। हदीस में है कि जब अल्लाह ने इब्लीस की नस्ल और उसकी ज़ौजा पैदा करना चाही तो शैतान पर गुस्सा का इल्का किया। गुस्सा की वजह से आग की एक चिंगारी पैदा की। इस चिंगारी से हक ताला ने इब्लीस की बीवी पैदा कर दी। जितने इंसान पैदा हुए हैं उतने ही जिन्नात भी पैदा हुए हैं। रिवायत में आता है कि शैतान हर रोज़ 10 अंडे देता है। हयातुल हैवान नामी किताब में शैतान की अफजाइश नस्ल के बारे में यूं मज़कूर है कि अल्लाह ताला ने इब्लीस की दाहिनी रान में मर्द की शर्मगाह और बाईं में औरत की शर्मगाह पैदा की है, जिससे हर रोज़ 10 अंडे निकलते हैं और हर अंडे से शैतान और शैतानियाँ पैदा होती हैं। शैतान ने अपनी बाज़ औलाद को बाज़ मखसूस कामों पर लगा रखा है। हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह के कौल के मुताबिक शैतान की बीवी का नाम तुर्तबा है और लाकीसो लेहान नामी ये दोनों शैतान वुज़ू और नमाज पर मामूर हैं। लोगों के दिलों में वसवसे डालते हैं। हफ़ाफ नामी शैतान लड़का सहरा पर मामूर है, सहरा में शैतानियत फैलाता है। ज़लम्बूर नामी शैतान बाज़ारों पर मामूर है, झूठी तारीफ और झूठी कस्मों पर लोगों को उकसाता है, नाप तोल में कमी और दूसरी बुराइयों में लोगों को मुब्तला करता है। बसर नामी शैतान मुसीबत ज़दा लोगों को जहालत के कामों, नोहा, मातम, गरिबान चाक करना, चेहरे को नोचने, मुंह पर चांटे मारने की तरगीब देता है। अबीज़ नामी शैतान अंबिया अलैहिस्सलाम के दिलों में वसवसा डालने पर मामूर है। आऊद नामी शैतान ये जना पर मामूर है, जना के वक्त मर्द व औरत की शर्मगाहों पर सवार रहता है, लोगों को जना की तरगीब देकर जना में मुब्तला करता है। वासिम नामी शैतान, इस शैतान की ड्यूटी ये है कि जब कोई शख्स अपने घर में बग़ैर सलाम किए या बग़ैर अल्लाह का नाम लिए दाखिल होता है तो वो घर वालों में फसाद कराने का सबब बनता है। घर वालों में फूट डलवा कर एक को दूसरे का दुश्मन बना दे।
मतूस नामी शैतान, ये शैतान गलत और बेबुनियाद अफवाहें लोगों में फैलाता है। भूत प्रीत, कीड़े मकोड़े, जिन्नात शैतान के अंडों से पैदा होते हैं। एक रिवायत ये भी है कि एक बार शैतान ने 30 अंडे दिए थे, 10 मशरिक में, 10 मगरिब में और 10 वस्तुल अर्ज में। इन अंडों से दुनिया में शयातीन की मुख्तलिफ किस्में, भूत प्रीत, कीड़े मकोड़े वगैरह पैदा होकर दुनिया में फैल गए। यहाँ ये बात भी अपने जहन में रख लीजिए कि मोहम्मद बिन काब अल-कर्ज़ी रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि जिन और शयातीन असल के एतबार से एक हैं, मगर ईमानदार जिन के नाम से और कुफारो शयातीन के नाम से मौसूम हैं। नाजरीन, अगर हम आज अपनी सोसाइटी में देखें तो शैतान मुख्तलिफ हथियारों से लैस होकर औरत और मर्द को वरगला रहा है कि वो अपने रब की नाफरमानी करें। मिसाल के तौर पर वो तालीमी इदारों में नौजवान लड़के और लड़कियों को वरगलाता है। वो एक दूसरे को गलत निगाह से देखते हैं और बहाना यही कि इससे क्या होता है, सिर्फ देख ही तो रहे हैं। जब इसमें कामयाबी हो जाती है तो एक दूसरे के दिल में हमदर्दी के जज्बात पैदा करता है। लिहाजा एक नौजवान सिन्फ मुखालिफ की मामूली तकलीफ पर भी उससे हमदर्दी महसूस करता और उसे दूर करना अपना फर्ज ऐन समझता है। हीला वही कि ये तो एक अच्छा काम है। अगले मरहले में बातचीत का आगाज होता है, जिसके पीछे यही मुहर्रिक होता है कि बातचीत में क्या हर्ज है। ये तो मॉडर्न दौर है, ज़माने के साथ चलना चाहिए, वरना लोग दकियानुसी समझेंगे। इसके बाद फ़ोन पर गुफ्तगू, चैटिंग, SMS का तबादला और नौबत मुलाकातों तक पहुंच जाती है। इन सब बातों के बावजूद ज़रूरी नहीं कि इसका मंतकी अंजाम जना ही हो। मुमकिन है इस इख्तलात का अंजाम निकाह ही हो। लेकिन बहरहाल शैतान इन तलबा को अच्छे करियर, साले अखलाक, यकसुई और माँ बाप की फर्माबरदारी से तो बिलअमूम महरूम कर ही देता है। एक मरतबा मुझे एक साहब ने सवाल किया कि वो अपनी क्लास फेलो से शदीद मोहब्बत करते हैं और उसे इजहार करना चाहते हैं। उन्होंने ये यकीन दिलाया कि ये मोहब्बत बिल्कुल सच्ची है और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ निकाह करना है और कुछ नहीं। लिहाजा इन्हें बातचीत करने की इजाज़त दी जाए ताकि अपने दिल का हाल मोहतरमा को बता सकें और कुछ उनकी सुन सकें। मैंने उन्हें कहा कि इसका सिर्फ एक ही रास्ता है और वो ये कि अपने बुजुर्ग अजीज़ो अकारिब के ज़रिए बातचीत की जाए। उन्होंने कहा कि अभी तो वो पढ़ रही है और मेरे लिए ये फिल वक्त मुमकिन नहीं। मैंने कहा तो क्या हुआ, निकाह की उम्र तो आपकी भी है और उसकी भी, रिश्ता तय कर लें, बाद में शादी हो जाएगी। मैं उन्हें कहता रहा कि आप किसी मोतबर वास्ते के ज़रिए बातचीत करें, क्योंकि बराह रास्त बात करने में कई फसाद बर्पा होने का अंदेशा है। लेकिन वो ना माने और मुझसे बातचीत मुनक़ता कर दी। बहरहाल शैतान ने हर मिजाज के लोगों के लिए फंदे तैयार कर रखे हैं। इन सब बातों से ऐसा महसूस होता है कि इंसान मजबूर है और शैतान को खुली छुट्टी है। कुरान के मुताबिक शैतान का काम सिर्फ वरगलाना और वसवसे पैदा करना है और बस। शैतान किसी को हाथ पकड़कर मजबूर नहीं कर सकता। इसलिए जो भी शैतान के झांसे में आ गया तो वो खुद अपने किए का जिम्मेदार है। आखिर में शैतान ये कहकर अलग हो जाता है कि मैं तुम्हारे अमल से बरी हूँ। करने का काम यह है कि शैतान के वसवसों को पहचाने और उसके झांसे से बचने के लिए कोई भी अमल करने से पहले इसका तज्जिया करें और अपने रब की मंशा मालूम करें। अगर वो अमल कुरान और सुन्नत की रोशनी में दुरुस्त है तो आगे बढ़ें, वरना उस शैतान के मुंह पर दे मारें। ये बिलाशुबा एक मुश्किल काम है, लेकिन साले, सोहबत, कुरान का फहम, अच्छी कुतुब का मुतालिया, अपनी शख्सियत का इदराक, अपने नफ्स पर काबू पाना और अपने रब से मुसलसल दुआ शैतान के हमलों से बचने के लिए अक्सीर है। इस जंग में इब्तदा ही से हथियार डाल देना अपनी ज़िंदगी शैतान के हवाले करने के मुतरातिफ है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें शैतान की औलाद और शैतान के शर से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।